I hope you are doing well during this time. Students, you are staying at your home, taking the online classes and taking the benefits from your knowledge of subject teachers. With this, let me introduce myself. This is Virendra, your computer science teacher, and I am here to give you the best knowledge here about your online tutorials, some of the tech updates, and some of the very fruitful videos for your knowledge to enhance your knowledge. So students, in this video, what we are going to learn in this, as you know that revision session is going on and your chapter number 1, that is number system, is going on. Previously, I had made a video related to number system. At least I have made 3 videos for that, right? And all are related to your revision session. Kindly watch that video so that you can have the better understanding. This is the part number 4, and in this part you are having your computer arithmetic. In the previous video you have understood about the binary addition and binary subtraction. In this video you have to understand about binary multiplication, right? So today's topic is, let's write it. Topic to be covered here. Topic to be covered here. Binary multiplication. Binary multiplication. ठीक है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को हम समझेंगे यहाँ पर. इसको समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि अगर आपके पास डेसिमल नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. हम चलिए देखते हैं. यहाँ पर सपोज करिए आपको मैंने ले लिया, एक नंबर ले लिया 45 और यहाँ ले लिया मैंने 11. अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है. 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, 5 आया. 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया. ठीक है, अब आपका काम खत्म हो गया. अब इस वाले 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 5. इस स्पेस को आप छोड़ देंगे आप, या आप यहाँ पे क्रॉस पुट कर दीजिए आप. इसके बाद अब आप इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करिए आप, यहाँ आ गया 4. अब आप लाइन खींचिए और यहाँ लगा दीजिए प्लस. 5 को चूंकि नीचे क्रॉस है तो आप 0 मान के चलिए, इसलिए आप यहाँ पर 5 लिख सकते हैं. यहाँ पर अब आपका हो गया 9 और यहाँ हो गया आपका 4. ये आपका हो गया आंसर. लेकिन दिस इज द ओनली 2 डिजिट नंबर. If you have any 3-digit number or 4-digit number, then you have to follow the same process. Okay, let me take one more example with related to 3-digit number. Right? Suppose I have taken here 4, 5, 2, and I have written here 1, 1, 2. Okay? Then 2 into 2, that is your 4. 2 into 5, that is, you can write here 0. And 1 is the carry, you can just make a note of it here. 2 into 4, that is 8, and 1 is the carry, it becomes 9. So you can write here 9. After that, so just make a note of the carry here. Then 2 into 2, that is your 2, 5, 4, and put one cross here. And again 1 into 2, that is your, first of all you will put 2 crosses here. Okay, I have taken this one, 1 into 2. So first of all I have to put 2 crosses and then I have to write 2. Then 1 into 5, 5, 1 into 4, 4. Now make an addition here. Make an addition here. So what you will do here, first of all 4, nothing is written here, that 4 is become 4, and 0 plus 2, that is 2. 9 plus 4, that is your 14. 14 plus 2, that is your 16. You will write 6 here and 1 is the carry. 4 plus 1, that is 5. 5 plus 5, that is your 0. 1 is the carry. And here you will write 5. So right now, this is the way to find out the multiplication of two numbers having the 3 digits or 4 digits or 2 digits, whatever else. The same concept is applied here in the binary multiplication. Okay, so let's have the rule first. First of all, we'll take the rules. In the rules,
First of all, 0 into 0, that is 0. Second, 0 into 1, that is also become 0. Third, 1 into 0, that is become 0. And fourth, 1 is to 1, that is 1. So this is the rule for multiplication. You have to apply these rules in the binary multiplication, right? So what we'll do that here, first of all, let's take an example here. Suppose I have taken here 111 and then I have written 1 0. Let's do the multiplication of this number. 0 into 1, that is 0. 0 into 1, 0. 0 into 1, 0. Put one cross here. 1 into 1, 1. 1 into 1, 1. Again, same procedure. Then make a underline. Then what you can have, just add it. 0, 0 plus 1, 1, and here 1, here 1, and this become your आंसर. अब आपको यहाँ पे याद रखना होगा जो एडिशन के रूल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए. इसी के अलावा अगर आप डिवीजन कर रहे हैं तो डिवीजन में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके सब्ट्रैक्शन के रूल्स हैं वो भी आपको याद होने चाहिए. ठीक है, ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी होनी है. तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा. ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए. ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है ये. सो अब आप इस तरीके से लिखते जाइए, मल्टीप्लाई करिए. यहां क्रॉस हो जाएगा, यहां डबल क्रॉस. अब आपको इसको ऐड करना है. अब सो देखिए 1 यहां उतार दीजिए. 1 प्लस 1 0 कैरी हो गया और यहां पे हो गया 1. अब आप इसको जोड़िए. अब आप इन सबको जोड़िए. 4 बार 1 है. सो मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पर इसको ऐड करने का जो तरीका है, सबसे पहले 1 प्लस 1 आप जोड़िए इसको. 1 प्लस 1 कितना हो गया? 10. 1 प्लस 1 क्या हो गया? 10. अब आप 10 में 1 जोड़ दीजिए. आप 10 में 1 जब जोड़ेंगे आप तो आपका हो जाएगा 11. 11 में फिर आप 1 जोड़िए तब आपका हो जाएगा 100. ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखिए 0 और यहाँ लिख दीजिए आप 10. 10 एज अ कैरी. अब आप यहाँ करिए 10 प्लस 1 करिए 11. 11 प्लस 1 करिए 100. और यहाँ पर अब आप क्या करिए 100 में 1 ऐड करिए आप तो आपका आ जाएगा 101. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1 और यहाँ कैरी हो जाएगा आपका 10. अब आप 10 में 1 जोड़िए. आप 10 में 1 जोड़िए 11. 11 में 1 जोड़िए आपका 100 आ गया ये. अब आप 100 का 0 यहाँ लिखेंगे और 10 यहाँ लिखेंगे. आप 10 प्लस 1 11. 11 आपने उतार दिया. ये रहा आपका आंसर. ठीक है, तो अब आपको अगर एडिशन के रूल्स अगर अच्छे से आपको पता है तो आप इस तरह के बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं. आप नाउ इट्स टाइम टू हैव द बाइनरी डिवीजन. बाइनरी डिवीजन हमें लेना है और बाइनरी डिवीजन को समझने के लिए आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन के जो रूल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में ये समझते हैं हाउ वी आर गोइंग टू डू द सब्ट्रैक्शन इन डेसिमल नंबर सिस्टम. थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसी रूल्स को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम. ठीक है, चलिए देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर ले लिया एक नंबर 54. इसको हमने 3 से डिवाइड करने की कोशिश की. सबसे पहले हमने एक सिंगल डिजिट लिया, इसको कंपेयर किया आपस में क्या डिवीजन पॉसिबल है. तो हमने सोचा हाँ यस बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ पर. अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 3 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पे हमने उतार दिया 4. ये जो नंबर है आपका ये हमने 4 यहाँ उतार दिया हमने. ओके, नाउ at the bottom side you will have the 24 and this dividend is. ठीक है, तो ये आपका डिविडेंड है 54. डिवाइजर आपका 3 है. क्वोशिएंट आपका फिलहाल 1 है आपका और यहाँ पर रिमाइंडर आया हुआ है 24. अब हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा 4 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 आपका आ गया. तो क्वोशिएंट है आपका 80. ठीक है, यहाँ रिमाइंडर है आपका, जो आपका रिमाइंडर है यहाँ वो आपका है 0. ठीक है,
तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट हमें इस्तेमाल करना है आपको यहां पर। एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं हम। इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए, 3 2 6, सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया, इसको हमने यहां उतार दिया 4। अब हम यहाँ पे देखिए एक बार पॉसिबल है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे उतारेंगे अब 12, इसको आपस में डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये आपका सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया। अब इस 7 को हम यहाँ उतारेंगे हम, ठीक है। इसके बाद इसको हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 6, रिमाइंडर आ गया 1। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका आ गया 1। क्वेश्चन आपका है 2142। तो यहाँ पे देखिए यही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, आपको यहाँ पर किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया, किस तरीके से हमने डिजिट्स को कंसीडर किया, ओके। तो इन सब चीजों को हमें ख्याल रखना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रूल्स की, कौन कौन से रूल्स हमें लेने हैं यहाँ पर डिवीजन के लिए। रूल्स में बहुत ही सिंपल रूल्स हैं इसके, और इस रूल्स को बिल्कुल यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से करेंगे जैसे कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ बस आपको जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन है उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, रूल्स हम याद रखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शंस के लिए। यहाँ पर रूल्स जो आपको याद रखना है वो याद रखना है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो बाइनरी के नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 110 और इसको हमें डिवाइड करना है 10 से, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है, तो आप इस तरीके से लिख लीजिए पहले आप। अब आप देखिए 10 यहाँ 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पर है, दोनों को एक साथ आप कंसीडर करिए आप। तो अब आप यहाँ लिखेंगे 10 1 10 और यहाँ लिखिए 10 और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगाइए। सब्ट्रैक्ट करिए आप 1 और 0, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर फिलहाल के लिए है, ठीक है। और ये जो 0 है इसको आप उतार दीजिए यहाँ पर आप, ठीक है। अब आपका क्या है 0 1 0। अब आप यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, यहाँ पर यहाँ आएगा 1, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से माइनस, सब जगह 0 आ गया है। तो अब आपका यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्वोशिएंट है। ये तो बहुत ही सिंपल सा डिवीजन का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा हम डिवाइड करके देखते हैं हम, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिजिट है, यहां भी आपको 3 डिजिट लेने होंगे आपको, ठीक है। तो यहां पर मैंने ले लिया 1 और यहां लिख दिया मैंने 101। अब हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था आपको नीचे आपको 1 लिखना होगा और यहाँ पर एक आ गया कैरी। सो 1 यहाँ पर है और ये 1 है, पहले इसको मैं क्या करना है यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको सब्ट्रैक्शन बताया था, ऐड करने पर 1 1 क्या हो गया 10, ठीक है। अब 10 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, 10 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 0 और अगेन हमारा यहाँ पे 1 कैरी हो गया। अब हम क्या करेंगे 1 + 1 10 और 10 में से अब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो देखिए सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, वहां लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। तो देखिए ये इसको जब उधार देते हैं 0 हो गया ना आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पर। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर इस केस में, अब आपको यहाँ पे जब चूंकि सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है तब आप डिवीजन का रूल ही चेंज कर देंगे आप, ठीक है। कैसे, देखिए जो प्रोसेस है वो हम चेंज करने जा रहे हैं हम, ठीक है। एक बार और देखिए 0 और यहाँ 1, यहाँ मैंने 1 लिख दिया, 1 कैरी हो गया। अब आप क्या किए, इसको और इसको आपने पहले ऐड किया, 1 + 1 10, ठीक है। अब आपने क्या किया 10 और यहाँ पे क्या है 0, सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिलेगा 10 ही मिलेगा, तो आपने 0 लिखा और यहाँ पे हो गया 1 कैरी। अब आप क्या करिए 1 + 1
10 और 10 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। तो देखो मैंने आपको 10 का जो डेसिमल आपको बताया था 2 बताया था, तो 2 में से 1 गया 1। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1, ठीक है, 101, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए यहाँ पर 101, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखेंगे जब आप 1 लिखेंगे तो 101 आपका यहाँ आ जाएगा और यहाँ सब जगह 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप क्या करिए यहाँ पर कि यहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट होने के बाद अब आप इस 0 को यहाँ पे उतारेंगे आप, ठीक है। तो 0 को उतारने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 को उतार लेंगे यहाँ पर 1 को भी उतार लेंगे अब, ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ पर 1 को उतार लेंगे अब हम चेक करेंगे तो बहुत छोटा नंबर है अभी आपके सामने। लेफ्ट में जीरोस हमारे काउंटिंग होते हैं हमारे, जैसे मैंने लिखा 02 तो 2 के बराबर माना जाता है वो, ओके। इस तरीके से ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ पर हम उतारेंगे, हम इस वाले नंबर को भी यहाँ उतारेंगे हम 011, अभी भी छोटा नंबर है ये, इसलिए हम इसको भी यहाँ पे उतार देंगे अब ओवरऑल इसको हम रीड करेंगे 110, इसको हम रीड करेंगे 110। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 दोबारा ले जाएंगे और यहाँ लिखेंगे 101, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोबारा आपको मिलेगा यहाँ पर 101 मिलेगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर, क्योंकि देखिए यही सेम प्रोसेस मैंने रिपीट किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 101 आ गया। अब हम लास्ट के इस नंबर को यहाँ पर हम उतार देते हैं हम, ठीक है। और उतारने से पहले चेक कर ले क्या डिवीजन यहाँ पॉसिबल है, बिल्कुल देखिए यहाँ पॉसिबल है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल सब 0 हो गया यहाँ पर अब, और लास्ट का जो एक नंबर है वो आप नंबर यहाँ के बजाय अब आप यहाँ पे उतार लीजिए आप, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, यही आपका हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका रिमाइंडर है। सो स्टूडेंट्स, I hope you are able to understand the binary multiplication as well as binary division. So students, now it's time to have some homework here and you have to do some practice at your home. Okay, so try this division. 1 4 times 0 111, and this will be divided with the help of 1001. This is the question number 1. Okay, now come to the question number 2. You have to do the practice. This is only for your practice, right? Now let's take the second one, 100. Then you have to divide with 101. Let's take one more, divide by 10. ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर को आप यूज करिए, यूज करके प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद जो भी इसका आंसर है यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, या फिर आप अपने प्रोसेस को व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं आप, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू फिनिश अप दिस वीडियो एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो with a new topic. Keep watching the other videos so that you can give your feedback in a quick precision manner, and I am able to motivate to upgrade myself. One more thing, keep watching the other videos and don't forget to subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon, because bell icon gives you a one kind of notification for my updated videos.